Okay, I'll start. See, in the last lecture we have discussed about oxidation number, right? Why we require oxidation number and how do we determine oxidation number? We have seen certain rules, like first one, free form होगा और any electropic form में होगा तो oxidation number is 0. Then next what we have discussed, monoatomic ion होगा तो same as charge on it, ठीक है. Then we have discussed fluorine. Whatever be the case, fluorine का oxidation number is -1. Then we have discussed hydrogen. Hydrogen का +1 with non-metals always, and is -1 for metals always, right? Then next we have discussed alkali metals. Alkali metals का what is oxidation number? Say always +1. Then alkaline earth metals +2. it's always +2, we have to remember. Then halogens का it is halogens का कितना होता है? -1 -1 in case of metal halides, right? In case of metal halides, in case they combine with other halogens in interhalogen compounds or non-metals. If they combine with halogens again or non-metals, we have to check for electronegativity. किसके साथ प्रॉब्लम्स आने वाली है? Fluorine is most electronegative. Then comes oxygen, then fluorine, bromine, iodine. Other than non-halogens, we have to look for oxygen, right? Otherwise, halogens ka it will be -1, right? Metal halides method is always -1. In case when one of the halogen combines with other halogen, we have to be careful. We have to check for electronegativity, even in case of it combines with any other non-metal. Then next, oxygen ka we have seen it's not needed actually, but still oxygen ka it's always -2 except some cases where the what were there? क्या cases थे? peroxide एक case था. Then superoxide, then ozonide, then compounds with fluorine. These were some exceptional cases. बाकी सारे केसेस peroxide में it is -1, superoxide में -1/2, ozonide में -1/3, peroxide में +1 और +2, right? Sorry, with fluorine में +1 और +2. So these were the cases which we have seen. Now इसके हेल्प से तो आप बहुत कम ही एटम का निकाल पाओगे, बाकी सबका निकालना होगा. मैग्नीज का निकालना हो सपोज, और से सल्फर का निकालना हुआ, और से कैल्शियम का तो चल पता है. देन कार्बन का निकालना हुआ, क्रोमियम का निकालना हुआ. तो इन सारे केसेस में आप कैसे निकालोगे? इन सब का कैसे निकालेंगे? तो सी दीज आर द डेफिनेट केसेस. इनका केस फिक्स है, यही आने वाला, राइट? बाकी केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर वेरी भी करती है. ऑक्सीडेशन नंबर जैसे अल्कली मेटल्स का +1, वैसे क्रोमियम का हमेशा +1 नहीं होगा, राइट? आयरन का हमेशा +1 नहीं होगा. +2 भी हो सकता है, 2+ भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन कंपाउंड. तो रूल क्या है? सम ऑफ ऑक्सीजन एल्जेब्रिक समझ रहे हैं. इसके अलावा अगर कुछ आता है तो आप क्या करोगे? तो इसके अलावा अगर कुछ आता है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वी हैव अ रूल. सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स in a compound is neutral molecule is 0, and if it is an ion, so in case of ion it is
and it is charge on it. It is charge on it. Yeah. Sum of oxidation number. I'll repeat. Sum of oxidation number of all elements in a compound is 0, and in case of iron, it is charge on it. ठीक है? तो ये रूल से बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट doing some questions. Let's take some questions. इनमें सबके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, सबका निकाला होगा, मुझे मालूम हाइड्रोजन का सबको पता है, बट स्टिल यू राइट. फॉर एग्जांपल इन दिस केस हाइड्रोजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फर का क्या होगा? व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन दिस केस एंड ऑफ सल्फर? एनीवन? H2S में बोलो. हेलो, हाइड्रोजन का +1 रूल से ही पता है हमको, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, राइट? मेटल्स के साथ इट इज ऑलवेज -1, विद नॉन मेटल्स इट इज ऑलवेज +1. सो हाइड्रोजन का फॉर श्योर इट इज +1. There is no confusion in it. Now question is how to determine for sulfur. So oxidation state or number of hydrogen here is +1. Sulfur ka I don't know, suppose is X. So how many hydrogens we have? 2. So there's sum 1 plus 1. How many sulfur we have? Only 1. So plus X. So sum of atoms in a neutral. So sum of oxidation number of each atom. Suppose hydrogen ka it is +1. There are 2 hydrogens, again +1. Sulfur ka it is unknown, suppose X. ये टोटल करके 0 होना चाहिए, तो X should be equal to -2. जो सल्फर का -2 आ गया, राइट? अभी स्टार्ट कर दो निकालना. हाँ, नेक्स्ट वन CH2Cl2. CH2Cl2 बताओ. सबसे पहले किसका आपको डिटरमाइन होगा? कार्बन का आप बता सकते हो क्या? नो सर. नहीं, सबसे पहले किसका पता लगेगा आपको? सर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ है तो ब्लाइंडली इट इज +1. नेक्स्ट किसका पता लगेगा आपको? किसी ना किसी रूल से आपको पता लग जाए, ऐसा कुछ है? क्लोरीन. क्लोरीन का सिर्फ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में ही प्रॉब्लम है या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई तो उससे प्रॉब्लम है? तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है. क्लोरीन -1 हो गया. नाउ नेक्स्ट इज कार्बन. अब कार्बन निकाल लो. कार्बन का इट इज X, इट इज -1. तो कैसे निकालेंगे? कार्बन एक ही है तो X, हाइड्रोजन के 2 एटम +1 +1, क्लोरीन के 2 -1 इज इक्वल टू 0. तो X is equal to 0. So oxidation state of carbon is 0 in CH2Cl2. Remember, confuse मत होना है इसमें.
हम वैलेंसी नहीं निकाल रहे हैं, रिमेंबर ना, वैलेंसी की कहानी कुछ और है। यहाँ पे हम एक्चुअल और चार्ज विच अपीयर्स व्हेन एनी एलिमेंट इज इन कंबाइंड स्टेट। आयनिक कंपाउंडों का तो सीधा सीधा चार्ज दिखेगा, या तो फिर इट अपीयर्स दैट इट कैरीज अ चार्ज। नेक्स्ट, ओजोन। ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जीरो, कोई भी चार्ज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होगा। देन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में सबसे पहले आप किसका निकालोगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में डाउट ही नहीं है, इट विल बी +1। वाई? सब तो नॉन मेटली दिख रहे, तो +1 ही आना, दिमाग क्या लगाना इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसका आपको पता चलेगा? नेक्स्ट किसका पता चलेगा आपको? सल्फर का 6 होगा। नहीं प्लस नहीं, नहीं, आंसर सही है, बट इस मतलब वो पहले पता नहीं चलेगा। सल्फर का वेरिएबल स्टेट होती है सल्फर ऑक्सीजन का, का +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन का पहले पता चलेगा, -2 है, बिकॉज ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ओजोनाइड एंड फ्लोरीन, इनको छोड़ के बाकी सारे केस में इट विल शो -2। तो इसमें मुझे पता है ना, -2 ही दिखने वाला, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सल्फर तो वेरी करता है। अब सोचो आप किसका निकलेगा? नाइट्रोजन भी वेरी करता है, सल्फर भी वेरी करता है। अब दिमाग लगाओ आप। बोलो किसका निकलेगा? अमोनियम आयन आपको याद रखना है। NH4 जहां भी ऐसा NH4 एग्जिस्ट करेगा ना, उसमें NH4 पे +1 चार्ज होता है। अमोनियम आयन अगर आप देखोगे ना, NH4+ ही होगा, राइट? तो दिस इज अमोनियम आयन। इसमें जब नाइट्रोजन आएगा वो +3 ही होगा, -3 ही रहेगा। समझा क्या बोला मैंने? नहीं? ऑप्शन नहीं आया। सी, NH4 ये अमोनियम आयन है, ठीक है? अमोनियम आयन जब ये आएगा, ये जहां भी आएगा, इसमें नाइट्रोजन का जो स्टेट है, ऑक्सीजन स्टेट, वो -3 रहेगा। आप कुछ भी करो, अमोनियम आयन ये स्पेशल केस है। ये जहां भी आया तो उसमें आपको नाइट्रोजन के बारे में सोचना है। इनफैक्ट आपको बहुत सारे आयंस का ऑक्सीडेशन, आयंस का ही याद रखना है। तो अमोनियम आयन जहां पे आएगा वो ही आएगा। हाँ, PO4 फास्फेट आयन, हाँ, वो जहां भी आएगा तो वो 3- ही आएगा। सल्फेट आयन ये जहां भी आएगा तो 2- ही आएगा। इसमें आपको देखना ही नहीं, अरे सल्फर का तो मुझे आता नहीं है, ये सोचने नहीं। सल्फेट जहां भी आएगा, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन मतलब ये इस पे चार्ज -2 ही रहना है, राइट? चाहे Na2SO4 आए या H2SO4 आए या कहीं पे भी आए, MgSO4 आए, जहां पे भी हो, तो SO4 के ऊपर 2- चार्ज है। तो सल्फेट आयन है। अभी भी नहीं समझा? अब नाइट्रोजन अलग से हाँ आएगा, सर समझा। N2O5 आया, तब मुझे टेंशन होगी, तब मुझे सोचना है कि नाइट्रोजन का क्या है। अब मुझे NH4 दिखाई दिया, अमोनियम किसी के साथ भी है, राइट? मुझे मालूम है नाइट्रोजन -3 है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब वो ऐसा आयन आपको याद रखना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 होगा। नाउ यू कैलकुलेट तो सल्फर, और वैसे भी सल्फेट आयन ही है, तो इसको छोड़ भी देते आप तो इस पे -2 है, तो इस हिसाब से सल्फर आप सोच सकते थे कितना होगा। बताओ अभी कितना हो गया सल्फेट, सल्फर का कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? बोला
अब तो बोलो। सल्फर सीना, ये कितना हो गया? +1, ये +2 हो गया, ये -2 × 4 -8 हो गया, -8 + 2 -6 हो गया, सल्फर का +6 हो गया। समझा? Yes, sir. नेक्स्ट, Na3PO4 किसका दिख रहा है आपको पहले से ही? सर Na का। Na का दिख रहा है। अल्कली मेटल है, रेडीमेड रूल है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कितना हो गया? +1। +1। फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, किसका आपको पता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पता है, -2। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बच गया। फास्फोरस बता दो कितना हो गया? कौन सा फॉर्म? कौन बेटा? देयर इज नो फॉर्मूला। कौन सा? वो क्या X बोला? प्लस वो जो अच्छा, फॉर्मूला है ना इसके लिए वो। अरे हाँ फॉर्मूला कुछ नहीं। देखो, सोडियम का +1 है। कितने सोडियम है? हाँ 3। तो 3 × +1 प्लस ऑक्सीजन कितने? 4। तो 4 ऑक्सीजन का पता -2 प्लस फास्फोरस कितना? X = 0। तो -8 + 3 सर -5। तो X माइनस। का वैल्यू नो +5 ना, +5 होगा ना। ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 है ना, तो -8 तो यही हो गया, +3 -8 + 3 = -5। तो फास्फोरस होगा +5। कुछ कंफ्यूजन है? हाँ सर, वो कैलकुलेशंस में गलती की थी। ओके, नेक्स्ट। सर 6th वाला क्वेश्चन क्या है? ClO4-, अभी आएंगे आपको। ClO4-। प्लीज नहीं आया तो पूछते जाना, बता कोई भी नहीं रहा। बहुत आसान हो गया वो, बस लिस्ट सामने रखो, टेबल रखो, जो रूल्स बताए हैं ना वो रूल्स सामने रखो, बस हो जाएगा। ClO4-। किसका डिसाइडेड है? ऑक्सीजन का या क्लोरीन का? सर ऑक्सीजन। हेलो, ऑक्सीजन का पता है। कितना है ऑक्सीजन का? -2। -2। क्यों? क्लोरीन का नहीं पता था? सर क्लोरीन का हेलोजेंस का? इस केस में नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि आपने बोला था ना वो। जब क्लोरीन नॉन मेटल के साथ आएगा तो बी केयरफुल। हाँ, फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ आएगा तो आप समझ जाना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आने वाला है, राइट? तो यहाँ पे क्लोरीन का नहीं पता था। ऑक्सीजन का तो सिर्फ जो भी मतलब ऑक्सीजन के टोटल कितने एक्सेप्शंस हैं? परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, और ओजोनाइड एंड फाइनली फ्लोरीन के साथ। बाकी तो सारे केस में ऑक्सीजन -2 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, -2 लिख दिया ऑक्सीजन का। देन नेक्स्ट बचा क्लोरीन। नाउ फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड आयन।
+7। +7। +7 कैसे आया? x का सॉरी क्लोरीन का x, तो x इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू चार्ज -1, so x -8 is -1, तो x is equal to +7, तो क्लोरीन का इट इज +7, राइट? सर नाउ उसके ऊपर जो नेक्स्ट, माइनस का साइन दिया है ऊपर के ऊपर, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है चार्ज है उसके ऊपर 1 नेगेटिव, ये आयन है अच्छा, तो वो ClO4 जीरो माइनस की जगह वहां पे इसलिए -1 दिया गया है। -1 लेगा, हाँ, तो आयन होगा तो इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, राइट? एंड अगर मॉलिक्यूल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, तो इट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम्स इज 0 इन दैट केस. सर नेक्स्ट, 7th वाले में ऑक्सीजन -2 है और क्रोमियम ऑक्सीजन 7 +7। ऑक्सीजन -2 है फॉर श्योर, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है फॉर श्योर, राइट? एंड क्रोमियम कितना हो गया? +7। +6 फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर, -2 नहीं देखा, 2 माइनस है ना चार्ज उसमें. हेलो, सी क्रोमियम का इट इज x, तो 2 इंटू x, इसका ऑक्सीजन का -2 +7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, so 2x - 14 is -2, तो 2x is equal to 12, x is equal to 6, so chromium का it is +6. now यस सर। S8 सल्फर का 0. कितना? 0, एलोट्रोप है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड इट इज 0. सॉरी, ऐसे 2 बार डाला। अच्छा एसिड 2 बार आएगा, सर एक बार और नीचे भी है। तो माय मिस्टेक, बिग डिफरेंस. CrO4 2 minus, सर CR3 होगा, +3। लाइक डिसाइड किसका वो ये बता, पहले डिसाइड होगा ऑक्सीजन का। रूल अपने पास ऑक्सीजन के लिए पड़ा हुआ है -2, माइनस फिर CR आएगा +6 है। +3। CR अब आएगा +6, बेटा CR2 नहीं है यहाँ, CrO4 है, CrX है और एक ही एक आटम अच्छा है क्रोमियम का, मुझे लगा मैंने कुछ गलत लिखा था, वो CR2O4 लिखा था, वो गलत है। तो CrO4 तो नहीं, तो x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू +6, तो क्रोमियम का इट इज +6. ना PbSO4,
सर इसमें ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीजन का एज यूजुअल -2 हो गया। फिर किसका निकालोगे आप? लेड का। उसके भी वेरिएबल होते हैं, सल्फ उसका भी वेरिएबल होता है। अब किसका निकालोगे? सर हम लोग सल्फर का +6 ले सकते हैं। लेना ही पड़ेगा। सल्फेट आयन है आपके यहाँ पे। अगर सल्फेट मतलब सल्फर किसी दूसरे फॉर्म में होता है, एज सल्फेट नहीं होता, तो फिर सोचना पड़ता, राइट? तो सल्फेट का +6 ही आएगा, बिकॉज SO4 2- सल्फेट आयन के ऊपर आपको याद होना चाहिए कितना है, -2 है। अब यहाँ से लेड आ जाएगा, तो लेड का कितना होगा? सर लेकिन उसका +6 आया कैसे? सल्फेट ऐसा आयन आपको याद रखना है, ये ऐसा पूरा आयन याद रखना। अच्छा SO4 2- है, तो बचपन से पढ़ सर रहे हैं लेड H2SO4 में, लेड तो +2 है। लेड +2, तो ये SO4 2- ही है। सल्फेट ऐसा आयन जब आए, ऐसा सल्फेट जब आएगा तो +6 ही हमेशा आएगा। समझा? जी सर। तो सर वो असली में मतलब हम लोग पीबी को अलग करेंगे और SO4 को अलग करेंगे क्या? हाँ, तो सल्फेट आयन जब देखो वो अलग से ही देखना आपको, नहीं तो आप बोलोगे ना लेड का पता है ना सल्फर का पता है, निकालूं किसका, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो वो -2 जो है, -2 हम्म, ऊपर दिया है, वो पीबी के लिए हाँ, नहीं है, सिर्फ SO4 के वो लिए। पीवी के लिए, SO4 के लिए। सल्फेट आयन है तो SO4 2- याद रखें। वो जहां भी सल्फर ऐसा सल्फेट जाएगा वो +6 ही लेके जाता है। KMnO4 किसका निकालोगे? पोटेशियम पर मैंगन में किसका निकालेंगे पहले? पोटेशियम। पोटेशियम का फिक्स है भाई, उसमें तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं आपको। तो पोटेशियम का कितना है? +1। +1। फिर अब किसका निकालोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन -2। -2। बच्चा मैंगनीज बता दो। +7। मैंगनीज का +7। किसी को डाउट? सॉरी, सर मतलब एल्कली जो मेटल रहते हैं उनका ऑक्सीजन पहले निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फिक्स्ड है। नहीं तो मतलब जो मैं रूल्स, पूछ रहा हूँ कि पहले किसका निकालना रहता है? देखो सबसे सेफ क्या है, जिनमें कोई पहले एक्सेप्शन नहीं है मेटल्स का उसको निकालना है याद कि रख। ऑक्सीजन का निकालना है? अच्छा। मेरी बात सुन ले बेटा, मेरी बात सुन ले। मेटल्स के पीछे मत भागो, मेटल्स में बहुत वैरायटी है। मैंगनीज, आयरन, लेड, इन सब के तो मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। मेटल मत वर्ड यूज करो। आप अल्कली मेटल दिखे तो 1, राइट? आपको अल्कली मेटल दिखाई दे तो 1 कर दो। इसमें आपको सोचने की जरूरत, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये +1 ही रहेगा। समझा? और जी सर। इनका +2 है बस, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना, राइट? उसके अलावा मेटल्स हैं तो उनके पीछे मत भागो आप। ये इनका अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका आपको +1 +2 फिक्स करना है, इसको चेंज नहीं करना है अपने सिलेबस में। अब हायर सिलेबस में कहीं हो तो आई डोंट नो।